The allegations made against the present Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu, by All Nishi Youth Association are vague and imaginary without any basis. Ever since BJP took the reins of Arunachal Pradesh with the Chief Minister Sri Pema Khandu as its head, the government has adopted a pan-Arunachal, I repeat, pan-Arunachal view in its developmental agenda by ensuring an inclusive and participatory approach in all decision making. The annual budgets, which were earlier done in closed doors, are now participatory, where all stakeholders have a say. A wider consultation with all strata of people is being carried out to give the formal shape to any decision or policy of the government. This government has been maintaining utmost transparency and accountability with heavy hands on corruption. We have received numbers of allegations. There is an allegation on the issue raised on creation of Chief Engineer Northwest Zone. It is not necessary to point out that our state is the largest in the Northeast India and the most sparsely populated state in the country. Taking governance and development to the doorsteps of each citizen is the mandate and duty of the government. It was a conscious decision of the government to decentralize governance and ensure ease of living of all its citizens. Accordingly, we have created divisional commissioners East and West. For administration and for works we have, for example, in PWD, we have Northwest Zone, Western Zone, Central Zone A, Central Zone B, and the Eastern Zone. And all these zones has been created to take the governance at the doorstep of its citizen. Government has consciously created administrative structures to decentralize governance to the doorsteps and to improve or ease of living of all its citizens. There is another allegation of creation of DOCA, Department of Tawang and West Kaming and Department of Boti Language. This is totally a misleading, as there is no such department as Department of Tawang and West Kaming and Department of Boti Language, except we have got Department of DOCA, which was created way back in 2009-10. Therefore, such unfounded allegations to disrupt our age-old tribal harmony is very dangerous trend for our state. We must all disown such tendencies with narrow disturbing agendas outrightly. And there is another allegation that no funds release and all funds go to Northwest Zone and Eastern Zone.
Such allegations have been raised time and again by the same persons. Several times, detailed records were shared by government with them and media too. This irresponsible attempt to bring regionalism and to sow seeds of enmity amongst peace-loving tribals is shameful to say the least. The allegations are totally baseless, and the records speaks otherwise. I shall read out the fund details as under. A. SIDF and the RE. Under SIDF LOC of rupees 2,269.27 crore was released to various work departments for the period from financial year 2017-2018 to financial year 2020-2021. Further, during financial year 2020-2021, additional LOC authorization of rupees 752.79 crore was provided against pending liabilities of SIDF and the additional RE of 2017, 2018 and the 2018-2019. Almost all liabilities under SIDF and the RE has been cleared. B. PWD zone-wise total fund release as on 2019-2020, 10th of January 2022 till yesterday. Western Zone, the total release was 826.2, which is 31.16% of total fund released. Eastern Zone, 507.76 crore, which is 19.16% total released from the total released. Central Zone A, that is 454.63 crore, that is 17.15% of the total released. Central Zone B, 434.99 crore, that is 16.41% of total released. And we have one more zone, that is Highway Zone. Highway Zone is different than Northwest Zone, that is on 322.47 crore, that is 12.16% of the total released. Highway Zone have 104.20, that is 3.93%. Total so far we have released in all these 6 zones in the PW departments is 2,650.7 crore, the total released. And we have got an allegation of misappropriation of funds. Our government is a transparent government. Any allegations of misappropriations of fund are open to scrutiny. Action against corrupt has been taken, I think, ever since Pema Khandu led the state. Ever since Pema Khandu led the state as a chief minister, we have arrested, I think, the largest number of corrupt, and has been action has been taken in totality. Instead of vague allegations, specific complaints will be taken cognizance of. Legal recourse is always there. The clean image of the government and no tolerance to corrupt practice is known to all. Previously, no government had
dare to take action on corrupt practices, but this government, Pema Kandu government, has done without any fear or favor. Therefore, I want to tell, burn coals only hampers the economic affairs of the state or a country, causing unnecessary harassment to the people. Had the state government not heard them or did not call them for talk, would have been a different matter. But despite repeated invitations for clarification, I am repeating, despite repeated invitation for clarification, the Anya team did not turn up for the reason best known to them. It appears that the main motive of this issue is to create disharmony in the state. Band has been declared as illegal and unconstitutional by various judgments of the Supreme Court of India, Kerala High Court as well as Guwahati High Court. The Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014 also attracts similar provisions against ban calls. If the unconstitutional ban call is not withdrawn immediately, such strict legal action will be taken against the enforcers. मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं. ऑनरेबल कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दे के रखा है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा अपना स्टेट का अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 में जो बनाया है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन या कोई किसी को क्रिपल करने का या क्रश करने का ये कानून नहीं है. ये कानून सिर्फ और सिर्फ लोगों का सेफ्टी, प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी, लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, डैमेज नहीं करने के लिए, उसी सेफ्टी के लिए कानून बनाया गया है. Therefore, apart from being a spokesperson of the government, I am also holding the Department of Home. तो मेरा एक दायित्व है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी, स्टेट का सेफ्टी के लिए, स्टेट का सिक्योरिटी के लिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है. स्टेट का जो प्रॉपर्टीज है इसको सेफगार्ड करना, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जो ब्रिज करेंगे, इन लोग को हम लोग समझाना, ये हम लोग का एक जिम्मेदार है. आई शुड मेक इट वेरी क्लियर that the security of citizens, protections of life and property of the state is the responsibility of the government. And we are committed to deliver 100% to ensure their safety. तो कल को अगर कोई भी बन कॉलर या कोई भी यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन हो, बन कॉल करके, एक्सक्यूज मी, बन कॉल करके अगर किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ये डिफरेंट जो जजमेंट है कोर्ट्स का, इस जजमेंट का अनुसार, इस जजमेंट में ये कहा गया कि कोई भी डैमेज होता है प्रॉपर्टी या एसेट, ये सारा चीज को रिकवरी विल बी डन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट विल बी एडहेयर टू. कल अन्य बन कॉल करेंगे, उसमें कोई सोशल एलिमेंट्स या कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन या कोई भी, और उस बन कॉल के द्वारा किसी का प्रॉपर्टी पर डैमेज करेंगे, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, देन जितने भी जो डैमेज आइटम्स है, ऑल दोज डैमेज आइटम हैज टू बी रिकवर्ड बाय द इन्फोर्सर ऑफ द बंद. ये क्लियर है, इट इज लॉ ऑफ द लैंड. Therefore, the government still appeal the Anya team to call of the band and come forward for talks. सरकार ने
दिसंबर 29 को एक लेटर भेजा फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफिस कि इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम्स एंड इफ यू हैव गॉट सम यू रिक्वायर सम क्लैरिफिकेशंस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से प्रेसिडेंट आन्या को एड्रेस करके एक लेटर भेजा, कम टू अस, गेट योर ऑल डाउट्स बी क्लैरिफाइड. तो they didn't turn off. Today again, the learned Deputy Commissioner of ICR, Itanagar Capital Region, also invited. I think they turned off. Despite that, ये सब सारा बात करके भी may the government still there is a time, still doors are open for get clarification, for talk. और मैं आन्या का जितने भी जो प्रेसिडेंट हो उसका जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आप लोग के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि यू कम फॉरवर्ड, आप आइए, हम बात करेंगे. क्योंकि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम का हल रास्ता में नहीं होता है, इट इज अक्रॉस द टेबल. सो आई वेलकम द टीम आन्या to come across the table, discuss, hammer out the solution for the welfare of the state and for the welfare of the people of Arunachal Pradesh. कहीं में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो all things हम लोग ने the government have prepared all the documents जो हम लोग क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग उसको बता देंगे कि these are the things you require, you are seeking for a clarification and we are ready. अभी भी रेडी है, कल भी रेडी है, एंड वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एवर, फॉर एवरी सेक्शन ऑफ लाइफ. कोई भी अगर सरकार से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट इज रेडी. ऐसा नहीं कि हम लोग आज ही बुला रहे हैं, हम लोग बुला भी चुका है, काफ़ी बातचीत भी हुआ है और आगे भी बात करते रहेंगे. और जो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने जो एक सिस्टम बनाया, पॉलिसी बनाया, इंक्लूसिव जो डिस्कशन के लिए, वो जारी रहेंगे. सो इट इज ए इंक्लूसिव गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वांट्स एवरी एंड ईच वॉक ऑफ द लाइफ जो है बी ए पार्टिसिपेटरी इन ऑल आवर डिसीजन टू मेक अरुणाचल ए बेटर प्लेस टू लिव इन. सो वंस अगेन आई अपील आन्या, टीम आन्या, टू कॉल ऑफ द बंद एंड कम फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन. कॉलिंग ऑफ द बंद will give more, this thing, ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए. क्योंकि बंद कॉल से मेरा ख्याल से 99.99% पॉपुलेशन को तकलीफ मिलेगा. तो इतने लोगों को तकलीफ करके, और जिम्मेदार सरकार को ये रहेगा कि ये 99.99% आदमी का सेफ्टी और सिक्योरिटी को देना ये सरकार का एक जिम्मेदार रहेगा. तो थ्रू दी स्टीम्ड मीडिया, through you, I once again appeal to the Anya team to come forward for discussion. So if there is any more clarification, I welcome questions. सर, आपको नहीं लगता है कि काफ़ी देर हो गया क्लैरिफिकेशन देने में गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटम दिया है. तो अभी जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया था बात करने में, क्लैरिफिकेशन देने को, और आपने जैसे पूरा अकाउंटेबिलिटी बताया, तो उस समय को सर थ्रू मीडिया भी आप गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे सकती थी. तो आप लोग रुक रहे थे कि उनके तरफ से बंद पोल अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू क्लैरिफिकेशन देंगे सर? हाँ, मैंने 29 को जब CMO ऑफिस से आन्या प्रेसिडेंट को इन्विटेशन, टीम आन्या को इन्विटेशन जब किया था, तो मैंने कॉल भी किया प्रेसिडेंट साहब को, और उन्होंने ये बताया कि नाउ वी आर इन द ईव ऑफ न्यू ईयर. काफ़ी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है अपना गांव चला गया या अपना रेस्पेक्टिव एरिया में चला गया. तो आने का बाद हम लोग डिस्कस करके फिर कन्वे करेंगे. तो हम लोग सोचा कि हम लोग इन्विटेशन तो दे चुका है, तो हम लोग इंतज़ार था कि उन लोग आएंगे. लेकिन जो आपने सवाल किया, अगर सॉल्यूशन अगर सरकार का पास है, किस लिए हम लोग देर हो गया या
जल्दी हो गया, ये सब कहानी क्यों बोल रहे हैं? अगर लोगों का भलाई के लिए, पब्लिक का भलाई के लिए, स्टेट का भलाई के लिए, स्टेट के हित के लिए अगर हम लोग अगर सोल्यूशन लाता है तो देयर इज नो पॉइंट दैट इन्विटेशन इज ऑलरेडी लेट और इन्विटेशन इज टू पास्ट. वी कैन नेगोशिएट, वी कैन डिस्कस अक्रॉस द टेबल. सर, आनिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में. उनका कहना था कि हम अभी तक कोई गलत नहीं कदम उठाए हैं. जो भी अब मैं उठा रहा हूँ अरुणाचल का लोगों के हित में है. ठीक है, सरकार को लगता है कोई इश्यूज शायद सही सिस्टम में नहीं उठाया, सही हिसाब किताब से नहीं उठाया. लेकिन उन्होंने, प्रेसिडेंट जो था बेबम जोरम ने कहा कि अभी भी 2 दिन बचा हुआ है. मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, मेरा बंद को मैं अनाउंस किया हूँ. यदि सरकार क्लैरिफिकेशन दे देता, ऐसा नहीं कि अन्या को ही जाना है या आना है, मीडिया में भी क्लैरिफिकेशन दे सकता है, वी विल कॉल ऑफ द बंद. तो इसके ऊपर में मंत्री साहब क्या कहना है आपका? नहीं, क्लैरिफिकेशन हम लोग अभी आप लोग को थ्रू से दिया गया है. जो एलिगेशन दिया गया आपका थ्रू से दे रहा हूँ. ये क्लैरिफिकेशन नहीं तो ये क्या है? ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ. अगर फर्दर और क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसमें अगर सेटिस्फाई नहीं है, जो अभी मैंने आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग किया, दिस इज पार्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन. अगर इस क्लैरिफिकेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं है, इफ दे वांट टू नो मोर about the clarification, then the door of the government is open. Even today also they can come. I invite them today also. I invite them tomorrow also. Even this late evening also I am ready. तो हम लोग बात करेंगे और हमारा पास क्लैरिफिकेशन पूरा है. जो उन लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए उन लोग को ले सकते हैं. यार हम एक्चुअली हमको सिर्फ देना नहीं चाहता था, हम बताना चाहता था कि दिस आर द थिंग्स एंड वी विल प्रोवाइड देम विद डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. जो आपने बताया फंड रिलीज कितना कौन से डिपार्टमेंट कितना दे, वो डॉक्यूमेंटेशन हमें भी दिया जाएगा ना सर? ये देखिए, एक तो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ. ये जो हम लोग जो है, जो अभी फिगर मैंने बताया, ये हम कहीं नहीं बनाते. ये वेबसाइट में अवेलेबल है. फाइनेंस डिपार्टमेंट का वेबसाइट में पूरा अवेलेबल है. इट इज़ ट्रांसपेरेंसी. नोवेयर इट इज़ ए रिटर्न मैंने सीक्रेट रिकॉर्ड. ये कोई सीक्रेट नहीं. इट इज़ ओपन फॉर ऑल पब्लिक, ऑल पीपल. Anybody can go into the website of the finance department and you can look into it. You will get it. और आपको ये फिगर चाहिए, आपको मिल जाएंगे. तो फाइनेंस का उधर वेबसाइट है. सो ऑल थिंग्स आर टोटली ट्रांसपेरेंट है. तो उसको कोई हम लोग छिपा छिपी वाला चीज नहीं है. एंड वी आर टॉकिंग ऑन द फैक्ट्स. दिस इज द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन स्पीकिंग. आप लोगों को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन स्पीक्स ऑन द फैक्ट्स, ऑन द डॉक्यूमेंट. जो हमारा साथ फिगर है उसका आधार पर बात करते हैं. सर, एक डिमांड है सर, जैसे कि तिराप एंड चांगलांग डिपार्टमेंट है, TCL है, DOTCL है, जैसे कि आपका दिया है, वो दोका है, ऐसे करके निसी इनहेबिटेंट. आई एम नॉट पर्टिकुलर टू कम्युनिटी, लेकिन आनिया का एक डिमांड रहा है, पहले से भी एक डिमांड चलता है और सोसाइटी में भी ऐसा आवाज़ उठते रहता है कि जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम 5-6 डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड है. आज भी हम लोगों ने देखा 11 MLA का प्रेस ब्रीफिंग, शायद 13 है टोटल. तो एक ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज चाहिए था या एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक देना चाहिए था. जैसे वेस्ट कामिंग एंड तवांग डिपार्टमेंट एक हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन में देखा था. इस तरह का भी एक डिमांड रहा है सर पहले से, और आप गवर्नमेंट स्पोक्समैन है तो इसके बारे में शायद आपको ज़्यादा जानकारी होगी. देखिए, फिर से आपको बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट कामिंग तवांग नहीं है. सर, वो नोटिफिकेशन क्या है सर? डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक दोका है. तो उसमें कोई वहाँ में डिपार्टमेंट ऑफ तवांग और वेस्ट कामिंग नहीं है. बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक उधर में बनाया, दैट इज दोका. तो वो इसलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है. कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करके 3-4 डिपार्टमेंट बन गया, लगता है सिर्फ एक ही है वहाँ पे. तो जहाँ तक आपका सवाल है, ये रिक्वायरमेंट और नीड बेस का ऊपर में जाएंगे. एज टू वाई इट इज रिक्वायर्ड. जो भी क्रिएट हुआ है, लॉन्ग एगो इट वाज क्रिएटेड. आई थिंक दोका वाज दोका एंड दिस थिंग TCL, Department of TCL was created long ago, and there must have been a justification. So if there is any justification, we may look into it. Sir, it's
Excuse me, sir. Sir. Sir, I have a question for you, sir. Sir, there's been, a lot of accuses on CM lately. So now there's also a report, circulating that, that NSN IM have, warned and accused the CM and the Deputy CM Chownaman of acting irresponsibly and failing to restore and fulfill the wishes of Naga people in TLC district of the state. Now, you being the, the government spokesperson, what do you, what's your statement on this? We have come across through social media and we are ascertaining कितना तो वो सही है कि एक्चुअल सोर्स से आया नहीं आया है. वी आर ascertaining it because ये सारा चीज़ जो हम लोग पेपर नहीं मिला है, कागज़ नहीं मिला है, तो स्टैब्लिश होने के बाद इफ इट इज़ ट्रू देन वी विल एग्जामिन टू इट कि वेदर इट इज़ फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स और समबडी इज डूइंग इट. वी विल फर्स्ट ascertain it. So even the CDFI, one of the Delhi-based Chakma organization, so they have also accused CM of using COVID-19 of the against CM actually. So they have sought the Prime Minister Narendra Modi intervention and accusing CM Pema Khandu of the COVID-19 to restrict the right to peaceful assembly, especially for the Chakma and Azimgad. I think the state have holistically handled the COVID-19 for the past 2 years, and we have not discriminated any identity or any people. Whoever lives in the within the boundary of Arunachal Pradesh, whoever lives in the territorial boundary of Arunachal Pradesh, everyone were taken care of equally. There is no discrimination to any section or any people. Maybe a refugee or whatever maybe a non-Arunachali, all were taken, but equally. We have therefore we have controlled it. Sir, it's very rightly stated that certain amounts have been sanctioned in a certain zone. The money has been allocation. You have also stated the particular amount, which is great. But at the same time, down the bottom line, how is the BJP government making sure that that amount is not being nullified? Let's face the fact that even the schools in the interior places have been completely in a dilapidated situation. If the amount is being sanctioned, where is the amount going on? It's not reaching to the places where it should be going. So how is the BJP government really monitoring it that the amount is not being nullified in somewhere in between, आपने जो सवाल किया जो एजुकेशन का बारे में, ड्यूरिंग दिस थिंग ये एसएसए टाइम में अभी भी एसएसए है. जो एसएसए का जो प्रोग्राम के अनुसार एवरी किलोमीटर में स्कूल होना है, और आप सबको पता है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज वी आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. तो देयरफॉर द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू क्लोज डाउन all the zero enrollment schools. तो कहीं स्कूल जो आप लोग पिक्चर में आ रहा है जो dilapidated बिल्डिंग है, that must be already closed down schools जो होता हो गांव में होता हो, तो that also has to be ascertained. क्योंकि जो लोग स्ट्रक्चर को गिराया नहीं गया लेकिन schools has been closed down. तो इसी आधार पर तो इसलिए आप लोग कभी I would like to appeal the all media friends, जो भी आप लोग रिपोर्ट देते हैं हम लोग को, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर, जो आप रिपोर्ट देते हैं वी टेक इट वेरी सीरियसली. तो आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से ग्राउंड में एग्जामिन कीजिएगा कि वहाँ पे स्टूडेंट है ना नहीं है, वेदर दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लोज डाउन स्कूल और स्टिल इट इज फंक्शनिंग. तो देयर उसका आधार पर अभी जो है अभी द गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड दिस ईयर एज ए स्कूल ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो उसका आधार पर सारा रिपोर्ट आ रहा है which are the schools to be strengthened, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, टीचर स्ट्रेंथन करना, वो कर रहा है. So, but sir, SSA is being also implemented, which is quite great. But at the same time, how will you really monitor the situation? For example, let's take the example of COME, right? Ratu district. The schools out there is as such that there is no sanitary, एक proper washroom तक भी नहीं है for a female out there. So the students out there, they have to walk all the way back to their home, come back, pee again and go back. And mind you, sir, वहाँ में 10 तक है. And the girls out there, they are going through their puberty, So in such
situation, how will the government really come up with a solid answer कि अच्छा ये tackle हो जाएगा? You know, as you said कि ये education year है, that was last year, it's 2022. So how is the government really going to come up with a solid answers to it? नहीं, इट इज नथिंग बिकॉज आपने एक तो पर्स में एक सवाल किया कि जो भी स्कीम्स जो अक्रॉस अरुणाचल में चलता है आजकल उसमें डुप्लीकेसी तो हो नहीं सकता है. नंबर वन बिकॉज इट इज जियो टैग्ड. सारा स्कीम जो जियो टैग होता है इट कैन बी मॉनिटर सिटिंग इन द ईटानगर ऑल्सो. तो सारा चीज़ उधर हो रहा है. और जहाँ तक कि आपने जो ये सैनिटेशन का जो बात करें स्कूल्स में, I think once I was a parliamentary secretary for education also, the top priority was to provide sanitation in every schools. तो अभी कहीं कहीं में अगर छूट गया है, I would like to request you, तो अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया, please convey the government, and we will seriously take the matter into consideration. सर अन्य का जो थोड़ी देर पहले मेरे कलीग ने भी पूछा था रिगार्डिंग डोका डिपार्टमेंट को लेकर से, तो आपने कहा था कि मिसलीड ना करें, कंफ्यूजिंग ना करें. तो मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ आन्या नहीं, काफ़ी लोग जनता भी कंफ्यूज है डोका को लेकर. तो आज एज अ स्पोक पर्सन आप मीडिया भी सभी है तो क्लियरिफाई कर दीजिए एग्जैक्टली डोका किसके लिए काम करती है, क्या काम करती है सर. नहीं, डोका जो है आई थिंक उसमें एक जो गाइडलाइंस जो बनाया गया है, तो किस आधार पर आप बात करते हैं आप लोग को हम लोग ये कागज़ में हम लोग दे देंगे एज टू वाई दिस डोका हैज़ बीन क्रिएटेड, वाई TCL, द डिपार्टमेंट ऑफ TCL हैज़ बीन क्रिएटेड. वी विल प्रोवाइड यू ऑल इन डॉक्यूमेंट्स. वी हैव नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हम लोग हमारे डायरेक्ट ऑर्डर लेके हम लोग अक्रॉस अरुणाचल में बात दिया है. उसका बाद आ गया कि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये पैसा जो है अभी तक डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू से. उसके बाद देन वी हैड सेंट जल जीवन मिशन. तो ये जो फिगर जो हम लोग को बता रहा है कि 89 करोड़ में तो कहीं इतना पान तो मेरे से ये स्टेट सरकार ने रिसीव नहीं किया है. भारत सरकार से हम लोग 14 फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 455 करोड़ रिसीव किया. तो विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पान इज स्टिल लाइंग इन द डिस्ट्रिक्ट. वी आर इंसिस्टिंग देम टू यूज इट इमीडिएटली, फटाफट यूज करने के लिए. देन कम्स 15 फाइनेंस कमीशन. तो 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है इट इज प्योरली लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफी. तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के आधार पर इट इज पर्कुलेटिंग डाउन अप टू द ग्राम पंचायत में लेवल. तो हम लोग GPDP जो हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ये कमेटी होता है उधर से इन लोग प्लान करके आता है. इसका प्लान भी किस में खर्चा करना है, क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू. It is the local state government, they are deciding it. Just we transfer the pound to the district. तो उसमें हम लोग 115 करोड़ ये एनुअली मिलता है, 240 करोड़ एनुअली मिलता है, 30 करोड़ जो 115 करोड़ करके हम लोग ये इंस्टॉलमेंट मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट में. एंड दिस फंड ऑल्सो हैज़ बिन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. तो वहाँ खर्चा कर रहा है. तो अभी हम लोग इंसिस्ट करें डिस्ट्रिक्ट में टू सेंड द UC इमीडिएटली. तो देयरफॉर जो एलिगेशन जो लगाया 889 करोड़, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फिगर. दिस मस्ट बी देयर फिगमेंटेड टाइप ऑफ फिगर मे बी. तो मैं आप लोगों को आपका थ्रू से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि all these funds has been sent to distributed to all the districts and so most of the funds may be used, some funds are yet to be used. तो हम लोग UC मांग रहे हैं. We are monitoring it every time, we are monitoring it. Thank you.